Welcome to e-learning class of JMS School. Good morning students. As we started our first chapter of history, how, when and where, and we have completed two topics, 2 points, that is what is history and importance of date. So from what is history we have the concept of importance of date, and from the date we have concept of periodization. So let's start today's class from periodization. So what's periodization? Periodization is the process of categorizing the past into discrete quantified main blocks. It means a long term of history just cut into some parts of time, that is periodization. In simply language, if we have an example to understand the concept better, that when you come to school your 6 hours of learning is fixed. But if we come to school only just considering 6 learning hours, is it possible to learn properly all the subject in that day? No. So what we do? We just periodization of these 6 hours as first period of Hindi, second is of English, third is of SST and so on. And the same process is with history also. As you read a book is periodization categorizes, simplified in chapters, and the same history is simplified by doing periodization. So, have you clear your concept of periodization? Now, the question is what is importance or what is the need of periodization? So, let's see. Simply to facilitate the study and analyze the history, or we can say to ease the study of history, we need to periodization, or for understanding the current and historical process of events. बहुत सारे इवेंट्स हिस्ट्री में हुए और उन इवेंट्स का प्रॉपर स्टडी करने के लिए हमें उस हिस्ट्री के इवेंट्स को पीरियडाइजेशन की जरूरत है. So from this concept, many historians bring the periodization of history. We will study James Mill. James Mill was a Scottish historian who categorized, or we can say who periodization of history of Hinduism, Muslim and British period. But James Mill was somehow of colonial mindset, and he just supposed Europeans superior and Asians have poorly civilized. So in India, the periodization of history was not got so much acceptance. Okay, then what happened? That this is we don't consider. Now come on the Indian scholars. So that because James Mill's periodization of history we didn't accept it, some Indian scholar, or we can say historian, periodization of history. First is ancient history or ancient periodization. The second one is medieval periodization, and the third one is modern periodization. Again, modern world has its own problem. Why? Because the modern world depicts progress. The modern world depicts progress, and it is taken from Western. And here, if we just consider the time of history, then modern period depicts the British rule in India. So, at the time of British rule in India, there was no development. Indians were denied for equality, liberty. इंडियंस को कोई लिबर्टी नहीं थी, कोई इक्वलिटी नहीं थी, उनका कोई प्रोग्रेस नहीं था, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं था. Even we saw the cottage industries of India was declined. Then economically India was drained in Europe, so there was no progress, and that's why the word modern periodization also cancelled. So instead of modern periodization, now we call it colonial period. So here I hope that you understood wholly what is periodization
and from word periodization and the concept of periodization, we have the another word, that is colonization. So let's come to colonization. So what's the colonization? Colonization is the process by which a central system of power dominates the surrounding land and its component. क्या होता है colonization? जब कोई बहुत माइटी स्टेट आसपास के सराउंडिंग लैंड पे या सराउंडिंग छोटे उनसे कम पावरफुल स्टेट्स पर, कम पावरफुल कंट्री पर जब डोमिनेट करना स्टार्ट करती है उस लैंड पर और उसके कंपोनेंट पर, तो हम उसे कहते हैं कोलोनाइजेशन. ओके, देन कोलोनाइजेशन लिंक टू द स्प्रेड मिलियंस फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट. कोलोनाइजेशन के लिए वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट जो है, जो उस समय की बहुत पावरफुल स्टेट्स थी, उन्होंने कोलोनाइजेशन के लिए सराउंडिंग जो लेस पावरफुल स्टेट है वहां पर माइग्रेट करना स्टार्ट किया. ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर. वी ऑल ऑफ नो, वी आर जस्ट फैमिलियर विद दिस हिस्ट्री कि ब्रिटिश जो है पहले व्यापारी बन के भारत में आए थे, बट दे फैसिनेटेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया. गोल्डन बर्ड कहलाने वाले इंडिया के संपत्ति से अंग्रेजों की आंखें जो है वो चकाचौंध हो गई, और ट्रेडर से अब वो क्या बन गए? ट्रेडर से अब वो कोलोनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया. ओके, दे यूज्ड इंडिया एज फीडर कॉलोनी. फीडर कॉलोनी का क्या मतलब होता है? कॉलोनी तो इंडिया बन ही गया था. जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि द वेस्टर्न Europe was more powerful than India, and when the more powerful states dominate the surrounding land and its component, it is called colony of that powerful land. So India became the colony of European state, that is Britain, and now Britain started to consider. Now the Britain started to consider द फीडर कॉलोनी. इंडिया को एक फीडर कॉलोनी मतलब अपना पोषण करने वाली केवल मार्केट के रूप में जो है ब्रिटेन इंडिया को समझने लगा था. दे ब्रॉट चेंजेस इन वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस. जब वो यहाँ पर रहे, पहले व्यापारी के तौर पर, फिर थोड़ा थोड़ा पॉलिटिशियन, कस्टम, कल्चरली उन्होंने जब हस्तक्षेप करना भारत में स्टार्ट किया, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस जो है वो लेकर आए. धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट लेटर हाफ 19th सेंचुरी इंडिया में पॉलिटिकल हस्तक्षेप भी, या हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटेड हो गया ब्रिटिश क्राउन, जो क्वीन विक्टोरिया उससे. ओके, देन मेनी चेंजेस in transport and communication, because they were here as a trader, as an administrator, so they need this development for their own selfish needs. उनके अपने स्वार्थ के लिए उनको इन सब चीजों की नीड हुई, इसलिए कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट वाले फील्ड में बहुत सारा प्रोग्रेस, बहुत सारा चेंज उन्होंने इंडिया के अंदर किया. ओके, अब जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, करस्पॉन्डेंस की नीड जब उन्हें ब्रिटेन से हुई, देन दे जस्ट फेल्ट द नीड ऑफ कीप द रिकॉर्ड सेफ, एंड दैट्स व्हाई मेनी म्यूजियम एंड आर्चीज वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड. एंड these preserved important document became the sources of information, as we can't say about history without source. So the important document which were preserved in museums and archives became source of information, and here our next topic will start, source of information. So let's come to the next point, that is sources of information. British kept all records in written condition, and these records were kept in the rooms. The rooms were known as the record rooms. Okay. Then why were records kept? क्यों जरूरत लगी उन्हें कि सारे रिकॉर्ड्स का जो है
उनको हम प्रिजर्व रखें। सो टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स, जैसे कि ब्रिटेन से जो ऑर्डर्स आते थे जो इंडियंस को दिए गए थे, इस तरह से सारे रिकॉर्ड्स को ओरिजिनली प्रिजर्व रखना उन्हें आवश्यकता लगी। एंड टू क्लेरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री कैसे कि इसको भी क्लियर करने के लिए रिकॉर्ड्स को रखना आवश्यक होता है। एंड अब रिकॉर्ड्स वी आर जस्ट रिवाइजिंग द वर्ड रिकॉर्ड। सो what includes, what kind of papers or what includes in record? So we get the things or the papers from which we get the information about the cultural, the social, the political and the civilized information, all are considered as record, as like official records, then letters, memos, surveys, newspapers, magazine, autobiographies, novels, poems and so on। ऐसे बहुत सारे और भी चीजें हैं जो रिकॉर्ड्स में आती थी, जैसे पॉपुलेशन का कोई सर्वे किया, बॉटनिकल गार्डन का कोई सर्वे किया, तो ये जो भी सर्वेज होते थे ये सारे भी रिकॉर्ड में आते थे। जो न्यूज़पेपर होते थे उसमें छपने वाली जो न्यूज होती थी वो सब भी रिकॉर्ड्स में आती थी। तो अब इन सब में सबसे ज्यादा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का क्या इम्पोर्टेंस है ये हम देखते हैं। टू डू प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इशू, ऑफिशियल रिकॉर्ड को क्यों हमें प्रिजर्व करने की आवश्यकता होती है। इफ वी सी टुडे आल्सो, अगर आज आप भी देखते हो कोई भी ऑफिसेस में, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जब हम जाते हैं तो वी कैन टेक द रिकॉर्ड फॉर प्रीवियस ईयर्स, जो भी पहले के कुछ सालों का भी अगर हमें रिकॉर्ड चाहिए होता है तो वो रिकॉर्ड हम ले सकते हैं और वो लेने का अधिकार हम रखते हैं। तो इसलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को रखना जरूरी होता है, ताकि अगर कोई इशू हो जाता है तो उस इशू को क्लियर करना रिगार्डिंग ऑफिसर्स को आए, या उस पर कोई बहस करनी हो, कोई डिबेट करना हो कि किस तरह से कौन सही, गवर्नमेंट कितनी सही, इस सब का भी हम तभी प्रॉपर वे में क्लियर कर पाएंगे जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा। सो दैट्स व्हाई। उसके बाद हम एक कंसेप्ट देखते हैं, वर्ड देखते हैं, तो कीपर। तो एक कीपर जो है वो अपॉइंटेड हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1771 टू अरेंज करंट रिकॉर्ड्स। उस समय इंडिया के अंदर एक कीपर रिकॉर्ड हुआ, इसलिए तो 1771 के करंट रिकॉर्ड रखने के लिए, और उससे पहले जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो थे उनको प्रिजर्व करने के लिए। इट मीन्स ये एक पोस्ट है कीपर की, उसे अपॉइंट किया गया करंट रिकॉर्ड को प्रिजर्व अरेंज करने के लिए और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं दिस रिकॉर्ड डू नॉट शो द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनाइजेशन। अब इन रिकॉर्ड का इम्पोर्टेंस तो है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं तो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होती है तो ये सब चीजें हमने देखी कि ये रिकॉर्ड्स होती है। पर अगर हम रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू या जस्टिफाइड टू इंडियन हिस्ट्री अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने कुछ रिकॉर्ड रखे, पर उन रिकॉर्ड से हमें इंडियन हिस्ट्री का पूरा डिपिक्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो दिखाना चाहा वो रिकॉर्ड उन्होंने प्रिजर्व रखे, जो नहीं दिखाना चाहा उनको उन्होंने हाइड कर दिया। जैसे उन्होंने अपने समय में किए गए इन्वेंशंस को रिकॉर्डेड रखा, उन्होंने करे इनोवेशंस जो करे, जो डेवलपमेंट करी, जो प्रोग्रेस करा, एज लाइक टेलीग्राम, टेलीफोन, करस्पॉन्डेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फील्ड में उन्होंने जितना डेवलपमेंट किया, हमें आज भी पता है भारत में ये चीज अंग्रेजों ने स्टार्ट करी थी, ये चीज अंग्रेजों ने स्टार्ट करी थी, बट उसके जो इफेक्ट थे इंडिया के ऊपर कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को अपना कॉलोनी बना लिया तो उसके बैड इम्पैक्ट जितने थे वो सब हाइडेड है, वो कहीं भी बहुत अच्छे से फॉरेन रिकॉर्डेड से शो नहीं होते। उसके लिए इंडियन रिकॉर्ड जब हम देखते हैं एट दोज हिस्टोरियंस एट द इंडियन हिस्टोरियंस एट दैट ऑफ दैट टाइम क्लियर द इम्पैक्ट और वी कैन से द इफेक्ट्स ऑफ these situations as like these are helpful in the sense of dates। हमें जो फॉरेन रिकॉर्ड जो है
वो डेट्स के अकॉर्डिंग, इवेंट के अकॉर्डिंग तो हेल्पफुल, बट नॉट वेरी यूजफुल इन केस ऑफ इंडियंस ड्रेन वेल्थ। इंडिया की जो वेल्थ है, जो यहाँ की संपत्ति है, वो किस तरह से फॉरेन में ड्रेन हो रही थी, इसका फार अफेक्शन जो है वो हमें नहीं पता चलता है। इंडिया जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से होम कॉटेज इंडस्ट्री पर, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री पर जो उसकी पुअर कंडीशन हुई थी, उसका पूरी तरह से जस्टिफाई, क्लेरिफाई हमें फॉरेन रिकॉर्ड से नहीं मिलता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, that is how, when and where. It is simply introductive chapter of next 3 chapter. In next chapter we will see how the British come as trader and became territory. Okay, thank you.